Hello guys, Namaste and welcome to day 3 review of first England versus India test being played at Headingley, Leeds. So overnight total of England was 209 for 3. They were trailing by 262 runs with Harry Brook just coming onto the crease and Oli Pope just completing that incredible 100. And from India side it was just Jasprit Bumrah who was the pick of the bowlers. He had a figure of 13 overs, he gave away 48 runs and took all the 3 wickets that fell on day 2 of England. So let's see how day 3 panned out for England and India. So Indians were lucky to get Uri Pope out early on day 3. It was actually a very widest delivery from Prasidh Krishna. It was on the platter for Uri Pope. He was looking to cut it and the ball unfortunately caught the outside edge of his bat and it was fortunately caught by Rishabh Pant for India. So yeah, बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी ओली पोप ने एंड देन हिज पार्टनर हैरी ब्रुक हैड एन इनक्रेडिबल डे. He scored 99 runs. He was dismissed by again Prasidh Krishna. Prasidh Krishna actually bounced him out. He was actually bowling him bouncers every now and then. So finally Prasidh Krishna got him out through a bouncer. Harry Brook tried to pull it and you know टॉप एज लगी एंड देन वो डिफाइन लेग में शार्दुल ठाकुर ने बहुत सिंपल कैच लग रहा था बट या जैसा इंडियंस फील्डिंग करें पिछले 2 दिन में था नहीं वो कैच सिंपल एंड फॉर्चुनेटली शार्दुल ठाकुर ने वो कैच ले लिया. Before this catch was taken, Brook was given couple of chances. Once was when he was on 46 by Rishabh Pant of bowling of Sir Jadeja, and once when he was on 82 of the bowling of Jasprit Bumrah, and this one was a dolly actually for him. Brook was trying to play in third man region, so he opened the face of his bat, and the ball caught his outside edge, and it was directly towards the third slip where Yashasvi Jaiswal was standing, and उनके शोल्डर हाइट में था, आराम से ले सकते थे बट it has been couple of days for Yashasvi Jaiswal where he would like to just forget whatever has happened because उनसे कल भी कैच छूटा था and आज भी ये वाला कैच छूटा. Though fortunately India got Harry Brook out on 99. Then talking about other batsmen, बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के कैप्टन है ही वॉज लुकिंग सेट. 50 डिलीवरीज बहुत अच्छे से खेले थे बट ऑन द 52nd डिलीवरी ही वॉज आउट. एक फिफ्थ स्टंप की डिलीवरी को डिफेंड करने चले गए, क्यों करने गए आई डोंट नो, आराम से छोड़ सकते थे, उनका भी आउटसाइड एज लगा एंड फॉर्चुनेटली ऋषभ पंत ने कैच लिया. Their wicket keeper actually Jamie Smith batted very aggressively, very courageously. He scored 40 runs of just 51 deliveries. So he was also dismissed by Prasidh Krishna and ये जिस तरीके से आउट हुए थे. So again it was a short delivery, pull shot मारे थे and on deep square leg it was Jadeja जो कैच मतलब ले सकते थे बट अगेन उनका बैलेंस बिगड़ा एंड पास में ही साई सुदर्शन थे. सो जडेजा पास द बॉल टू हिम एंड इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन कैच. फॉर्चुनेटली इंडिया ने जो कैच जो उनको मिले फिर बाद में उन्होंने वो कैचेस लिए, क्योंकि पहले तो इट वाज जस्ट कैटास्ट्रोफिक फ्रॉम इंडिया इन फील्डिंग डिपार्टमेंट. सो या फिर Jasprit Bumrah was the one who dismissed Chris Wokes and Josh Tongue and completed his 14th fifer overall and 12th away from India, equaling our great Kapil Dev. Credit to Bumrah. सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी दो सिराज ने 2 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया के लिए सिर्फ लीथल बॉलिंग अगर कोई कर रहे हैं सो डैट वाज ओनली जसप्रीत बुमराह. ही वाज the only one who was actually troubling the England batsman. बाकी it has been an inning to forget for प्रसिद्ध कृष्णा cause वो 20 ओवर डाले हैं and 128 रन्स दिए with an economy of 6.4. really poor in test cricket. Similarly सिराज 27 ओवर्स डाले, 122 रन्स दिए with an economy of 4.5. so as an Indian हम अपने बॉलर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एंड जिस टाइप की कंडीशंस रहती है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा मेडन्स डालेंगे, थोड़ा सा और ट्रबल करेंगे, बट यहाँ पे एक्चुअली पूरा उल्टा देखने को मिला. जसप्रीत बुमराह अगेन वाज द ओनली वन हु वाज एक्चुअली ट्रबलिंग इंग्लैंड बैट्समैन. अदर देन हिम कोई भी लीथल नहीं दिखा. शार्दुल ठाकुर सिर्फ 6 ओवर डाले, जडेजा 23 ओवर डाले बट वो भी उतने ज़्यादा लीथल नहीं दिखे. ही कंप्लीटेड हिज ओवर वेरी क्विकली. जैसा हमको पता है कि वो विद इन
3 मिनट्स 2 मिनट्स में अपना ओवर कंप्लीट कर लेते हैं. सो डिसेंट बॉलिंग किया उन्होंने, बट ही वॉजेंट ट्रबलिंग द इंग्लैंड बैट्समैन एट ऑल. एक चीज़ थी जो इंडियंस को बहुत ज़्यादा इरिटेट करी आज के दिन थी, वो थी क्रिस वोक्स एंड ब्राइडन कास की पार्टनरशिप. उनकी पार्टनरशिप थी वॉज फॉर 55 रन ऑफ जस्ट 44 डिलीवरीज, एंड इट वॉज दिस पार्टनरशिप विच टुक इंग्लैंड par 450 runs. England were, finally bundled out for 465 runs with only 6 run deficit. So इंडिया को सिर्फ 6 रन की लीड मिली. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इसके बारे में हम बात करें ना, तो आफ्टर येस्टरडे ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंडियंस वुड हैव एक और अच्छा प्लान बना के आएंगे, कुछ ना कुछ सोच के आएंगे हैरी ब्रुक के लिए, या फिर बेन स्टोक्स के लिए, जेमी स्मिथ के लिए सोच के आएंगे. बट वैसा कुछ दिखा नहीं मेरे को इंडियंस की तरफ से. जब भी शुभमन गिल को कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, ही वॉज अगेन एंड अगेन लुकिंग टूवर्ड्स जसप्रीत बुमराह. तो ठीक है यार, एक चीज़ है, आप चाहते हो कि आपके जो बेस्ट बॉलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डाले, बट एवरी टाइम आप बर्डन पूरा जसप्रीत बुमराह के ऊपर नहीं डाल सकते. इट्स जस्ट नॉट राइट फॉर हिम, बिकॉज वी ऑल नो उनको वर्कलोड मैनेजमेंट में दिक्कत होती है. सो पुअर फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू मी. एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट व्यू. आई एम श्योर कि किसी को ऐसा लगा होगा कि इंडिया का जो भी प्लान था वो अच्छा था, बट अकॉर्डिंग टू मी इंडिया वर पुअर एंड इंडियन शुड हैव डन अ लॉट वेल, एंड एटलीस्ट 70 to 80 रन की लीड लेके जाना चाहिए था सेकेंड इनिंग में. नेवरदलेस इंडियन स्टार्टेड द सेकेंड इनिंग विद 6 रन लीड, एंड स्टार्ट भी बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक हुई क्योंकि यशस्वी जायसवाल वॉज डिसमिस्ड वेरी अर्ली बाय ब्राइडन कास. इट वॉज अ वेरी गुड डिलीवरी, स्क्रैम्बल सीम थी, एंड इट जस्ट पिच्ड एंड निप्ड अवे विच टुक द आउटसाइड एज ऑफ यशस्वी जायसवाल्स बैट, एंड जेमी स्मिथ टुक अ वेरी डिसेंट कैच. देन इट वॉज KL Rahul and Sai Sudarshan who steadied the ship for India. उनकी पार्टनरशिप थी फॉर आई थिंक सो इट वॉज फॉर 66 runs of 106 deliveries, where Rahul scored Rahul throughout the day scored 47 runs and Sai Sudarshan scored 30 runs. एंड ये जो 30 रन थे वो साई सुदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज जैसा हमने देखा था फर्स्ट इनिंग में वो कितनी ख़राब डिलीवरी में आउट हुए थे, एंड ये वाली जो इनिंग थी इसमें उनसे हमको 2-3 अच्छे शॉट भी देखने को मिले. सो ऑफकोर्स ये उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा. एंड या अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी सेकेंड टेस्ट में भी उनको चांस मिले, एंड वहाँ पे वो अपना जो एक्चुअल टैलेंट है, जो उनका जो एक्चुअल टेम्परामेंट है, वो फिर अपना प्रेजेंट करे वहाँ पे. एंड या इंडियंस completed on 90 for 2. Sai Sudarshan was dismissed by Ben Stokes. Again, normal सी इन स्विंग बॉल थी, एक सॉफ्ट डिसमिसल था. साई सुदर्शन लुक टू फ्लिक इट एंड डायरेक्टली शॉट मिड विकेट में जैक रॉली खड़े थे, उनके हाथ में मार दिया. सो अगेन ही वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दोनों इनिंग्स में बहुत ख़राब बॉल्स में आउट हुए हैं. एंड या ही विल बी he will surely correct his mistake, and second test में हमको उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी. So let's just hope that. And yeah, that's it from day 2. Indians are leading by a total of 96 runs as of now. Let's see day 4 में वो कैसा बैटिंग करते हैं. एंड मेरे हिसाब से तो Indians need to give a target in excess of 300, cause उसके पहले तो यार अगर आप 250 के नीचे दोगे, या फिर अगर आप 250 से 300 के रेंज में भी दिए, सो हेडिंगले हैज़ बीन हिस्टोरिकली हैज़ बीन द ग्राउंड वेयर 250 हैज़ बीन चेस्ड 4 times इन द लास्ट 6 टेस्ट मैच. सो वहाँ पे फिर आपका एक तरह से कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा. ऐसा लगेगा कि आपने फर्स्ट टेस्ट को जस्ट इंडियंस जस्ट थ्रू अवे द फर्स्ट टेस्ट. सो मैं चाहूँगा कि इंडियंस कल बहुत अच्छे से बैटिंग करे, KL राहुल अपना 100 कंप्लीट करे, शुभमन गिल अगेन नीड टू गेट इन जैसा उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करी है उसी चीज़ को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, बस बट दिस टाइम अ लॉट मोर एग्रेसिवली, बिकॉज कल day 4 है, एंड आप एक दिन में तो इंग्लैंड को आउट कर नहीं पाओगे. सो इंडियंस हैव आई थिंक सो 2.5 सेशंस, एंड 2.5 सेशंस में इंडियंस नीड टू स्कोर 200 रन्स और मोर देन 250 रन्स, ताकि वो इंग्लैंड को 352, 380 और 400 तक का टारगेट दे पाएँ. लेट्स होप इंडियंस डू दैट. एंड yeah, I'll see you tomorrow with day 4 review. Thank you so much for watching.